Hello everyone. Welcome to the first video of the API security series, which is Introduction to APIs or the Basics of APIs. So, इस वीडियो में we will understand what are APIs, API का architecture क्या होता है, what are the types of APIs available, and what are the common vulnerabilities or misconfigurations that we can find out in APIs. And lastly, we will understand the impact of those vulnerabilities and misconfigurations on the particular organization for which those APIs are belongs to. And all of introduction about API is very basic and the key knowledge that we need to understand before we need to attack any API or any API infrastructure. So let's get started with our first video. Understand what are APIs. So if I say APIs are the application programming interface that allows or that works as a messenger between different services or different applications. Simple terms में APIs हम use करते हैं to transfer the data or information between two applications. So if I give you a very basic example that is related to API and in a real world basically. सो लेट्स से जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब हम फूड ऑर्डर करते हैं वी ऑर्डर आवर फूड वाया वेटर सो बेसिकली व्हाट वी डू व्हाट आर द कॉमन स्टेप्स दैट वी यूज टू ऑर्डर आवर फूड एट एनी रेस्टोरेंट सो विल फर्स्ट हम मेन्यू कार्ड चेक करते हैं कि लेट्स से वी वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा और पास्ता देन सेकंड हम वेटर को कॉल आउट करते हैं कि हमें ये ऑर्डर देना है वेटर हमारा ऑर्डर लिखता है एंड he will give the order to the chef basically who is in the kitchen. So यहाँ पे treat menu and kitchen as two services. Now try to understand these are the two services. अब इन दोनों को डेटा चाहिए किचन में शेफ को क्या चाहिए कि क्या ऑर्डर आया है सो उसके लिए मीडिएटर और मैसेंजर का काम किसने किया वेटर ने किया सो वेटर इज बेसिकली एन एपीआई बिटवीन मेन्यू कार्ड एंड द किचन एंड फाइनली हमने वेटर को कॉल किया था बेसिकली वी कॉल्ड दैट एपीआई लेट्स से हमने कोई ऐप यूज करा था हम रेस्टोरेंट में तो हमने वेटर को कॉल आउट किया था हमने वो एपीआई कॉल करी तो हमें डेटा मिला विच इज हमें फूड हमारा वापस हमको मिल गया लेट्स अंडरस्टैंड the API architecture. So basically, API architecture is just a set of rules and definitions or a framework which helps us to understand like how these all set of APIs will work, what is the language and all those like how the data will be transferred, all those information is stored or it comes under API architecture. So API architecture में 4 layers होती हैं data layer, integration layer, application layer and interaction layer. So सब layers को एक example से समझते हैं. Let's say a patient wants to book an appointment to his doctor. सो क्या होगा पहले पहले फेज में इंटरैक्शन लेयर यूज होगी बेसिकली इंटरैक्शन लेयर एज द नेम सजेस्ट कि लेट्स से कि पेशेंट अपना जो अपॉइंटमेंट है वो वाया मोबाइल एप्लीकेशन बुक कर रहा है सो दैट मोबाइल एप्लीकेशन इज ट्रीटेड एज एन इंटरैक्शन लेयर बिकॉज ही और शी कैन इंटरैक्ट विद इट लाइक अगर अपॉइंटमेंट बुक करने में कुछ डिटेल्स चाहिए होते हैं जैसे नेम फोन नंबर योर एड्रेस और सम काइंड ऑफ your a little bit details about why you want to consult to the doctor so so that comes under interaction layer then second aati hai application layer so application layer is basically works as an API gateway so जैसे वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि जब हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हमें ऐप पे है कि अपनी डिटेल्स फिल अप करने के बाद वी नीड टू गिव द पेमेंट वी नीड टू इनिशिएट द पेमेंट सो जब भी हम पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक एपीआई कॉल होगी विच इज लेट्स से एंड पॉइंट इज देयर स्लैश पेमेंट सो वो एपीआई हिट होगी तो वो एपीआई कैसे हिट होगी इट्स ऑल द बिजनेस लॉजिक एंड एवरीथिंग इज डन बाय द एप्लीकेशन लेयर नाउ लेट्स से इंटीग्रेशन लेयर सो इंटीग्रेशन लेयर में क्या होगा लेट्स से द डॉक्टर इज यूटिलाइजिंग और द डेवलपर
is utilizing a third party APIs for the payment purpose. सो इंटीग्रेशन लेयर में वो सारा इंटीग्रेशन होगा। लेट्स से हम कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं या कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे हैं, तो हमारे एपीआई आर्किटेक्चर में या हमारी एपीआई में वो सारे इंटीग्रेशंस हो जाएंगे। नाउ द लास्ट कम्स is the data layer. So data layer, as the name suggests, is basically stores all the data, basically the database. So flow क्या बना, जैसे ही मोबाइल ऐप पे सारी डिटेल्स फिल हुई, पेमेंट बटन क्लिक हुआ, सो एपीआई रेस्पेक्टिव एपीआई कॉल हुई, एपीआईज ने डेटा लिया सारा और डेटाबेस में अपलोड कर दिया, एंड द अपॉइंटमेंट इज डन via mobile app only. So this is how a architecture of API looks like, and how all these layers work together to provide user or like all the functionality that are available in the application. Let's understand how APIs work basically. We already understood like the flow and everything in the API architecture, but a very common overview or how APIs are work basically, let's say I already told you like APIs can be used in any applications, either it's mobile, web, or desktop application, IoT application, anywhere. So what happens, like the common architecture as you can see on the screen as well, like any request from these applications comes to API gateway. So API gateway को हम एक example treat it as an index. So API gateway के पास सारी information होती है. So let's say कोई mobile app से आई और उसको कोई डेटा स्पेसिफिक डेटा चाहिए, तो API गेटवे उसको उस बैकएंड सर्विस पे राउट कर देगा. So that information is stored under API gateway only. So it treated as an index कि अगर कुछ delete user की API request आई है तो वो कौन सी backend सर्विस पे जानी चाहिए. It's all configured on API gateway only. सो दिस इज़ द कॉमन वर्क फ्लो, और ऐसे ही एपीआईज वर्क करती हैं कि जैसे हमने मोबाइल एप्लीकेशन से लेट्स से वी हैव अ फीचर कि हमें अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो अपडेट प्रोफाइल का जो बटन होगा हमने उस पर क्लिक किया और जो भी उसका रेस्पेक्टिव एपीआई एंड पॉइंट होगा वाया एपीआई गेटवे वो उस स्पेसिफिक माइक्रो सर्विस और स्पेसिफिक बैकएंड सर्विस के पास चला जाएगा और हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा एंड आवर प्रोफाइल गेट अपडेटेड. सो ऐसे APIs वर्क करती हैं. We will see 2-3 example of how API requests look like in the next slide, or I can say in couple of minutes. So before that, let's talk about authentication in APIs. So क्या होता है कि sometimes companies और जो APIs owner होते हैं, they need to secure their API endpoints or the complete API. So जैसे मान लो कि कोई एपीआई में बहुत सेंसिटिव डेटा आ रहा है, कस्टमर का डेटा, पेशेंट का डेटा, एनीथिंग. सो वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र और कोई भी अनप्रिविलेज्ड यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके. सो उसके लिए हम APIs में ऑथेंटिकेशन लगाते हैं. So there are various type of authentications as you can see on your screen as well. Basic authentication via API keys, via JWT token, OAuth as well. So right now we are not digging deep into all of these authentications, but in upcoming videos we will understand what all are these, what are the difference between these all of these, and like how much like which authentication mechanism is more secure and how we can break those authentication mechanisms as well. Then there are types of APIs. So types of APIs are completely depend on the exposure. एक्सपोजर से मेरा मतलब कि जैसे पब्लिक एपीआई, प्राइवेट एपीआई और पार्टनर एपीआई. सो अगर मैं पार्टनर एपीआई का एग्जांपल दूं, सो पार्टनर एपीआई इज बेसिकली APIs which are disclosed between two partners or two parties basically. अगर एक hypothetical example लेते हैं, let's say कोई health insurance company है, वो किसी बैंक से tied up है, तो वो बैंक और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, वो मान लो बैंक की जो एपीआई है वो सिर्फ वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेस कर रही है, सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है, टू फेच डेटा, टू अपडेट द डेटा ऑफ ईदर द बैंक और द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी.
So that comes under partner APIs. Private APIs basically any or all those internal APIs that belongs to specific organization only, जो organization के अंदर ही use होती है for internal purpose. Public API, as the name suggests, for the public use. जैसे Twitter की API है, like to crawl, like to send tweets via API and all for automation purpose. All those things like public APIs are basically that meant to be for public use or all those purpose. Now let's take a example of how the API request looks like. So all the APIs works on HTTP protocol only. Like all the get, post, put, delete, all these methods are available in APIs. बट हमें कभी API रिक्वेस्ट ऐसे दिखती नहीं है। जैसे लेट्स से हम Amazon पे जाते हैं, जब हम अपना कार्ट की डिटेल्स अपडेट करते हैं या हम कुछ भी डिटेल्स अपडेट करते हैं, तो हम हमारी एप्लीकेशन या Amazon की जो वेबसाइट है वो कभी रीलोड नहीं होती है। बिकॉज़ एवरी क्लिक और कोई भी हम जो फीचर पे क्लिक करते हैं डिटेल्स अपडेट करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, वो सब एपीआई के थ्रू होता है। तो ये हमें नॉर्मली ऐसे एपीआई रिक्वेस्ट दिखती नहीं है, बट ऑल दीज़ एपीआई रिक्वेस्ट आर सेम लाइक एचटीटीपी रिक्वेस्ट ओनली, लाइक एचटीटीपी, एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट ओनली। सो अगर आप ये फर्स्ट एग्जांपल में देखो कि एक ये एंड पॉइंट है स्लैश टॉपिंग्स करके, विच इज वाया गेट रिक्वेस्ट। जब मैंने इसको सेंड किया तो इट हैज़ गिवन मी दिस जेसन आउटपुट, जहाँ पे आपको सारी टॉपिंग्स की डिटेल्स मिल गई बेसिकली। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब हमने क्या किया कि उस टॉपिंग्स में एक और एंड पॉइंट डेवलपर ने बनाया जिसमें हमने पैरामीटर ऐड किया, आईडी पैरामीटर। सो अब इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द टॉपिंग्स, उसने हमें स्पेसिफिक आईडी पैरामीटर के बेसिस पे हमें रिजल्ट्स दिए। सो दिस इज हाउ लाइक द एपीआई वर्क्स। सो एक और एपीआई देखते हैं विच इज सेंडिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट। सो हमने क्या किया, अब हम अपनी एक टॉपिंग ऐड करना चाहते हैं इन दैट एपीआई। सो हमने रिक्वेस्ट सेंड करी, हमें ट्रू रिस्पॉन्स मिला। सो अब लेट्स सी कि हमें वो वाली हमारी टॉपिंग ऐड हुई है कि नहीं हुई है। लेट्स सी, you saw our toppings get added in that request only, like in that topping database only. So this is how these APIs work basically, कि इन द बैक एंड लाइक जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी इनको इनपुट चाहिए, जैसे /1 डाला तो उसको एक आईडी पैरामीटर चाहिए था जिसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिल गया। किसी में पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए जो कि डेटा अपडेट कर रही है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एपीआईज दैट आर अवेलेबल, लाइक द मल्टीपल एपीआई। we will try to build some cyber security APIs जहाँ पे हम अपना reconnaissance process कर सकें, सब कुछ। I will show you in upcoming videos, but not as of now. So understand. I hope you understand what, like how these API requests looks like, what all the data's like that is coming from those API response and all. So now we can you parse this JSON data in our application and we can display the way we want to display in our application. And like that's how APIs basically works. Now we all have fair understanding of APIs. Basically APIs कैसे वर्क करती हैं, APIs होती क्या हैं, APIs में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे आता है, द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी can get or expect from APIs. So before ending this video, I just want to explain about the importance of APIs. Also, why APIs are becoming the essential part in modern development. So there are some pointers. So I will start with the point. So जैसे आप लोगों को पता है कि APIs को हम वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और इवन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ एडिशनल डेवलपमेंट। सो अगर हमें डेटाबेस से डेटा चाहिए वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन में या डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, हम सेम एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमें ज़्यादा एडिशनल डेवलपमेंट नहीं करना पड़ा। दूसरा, अब हम एपीआईज़ के थ्रू ही सब कुछ कॉल कर रहे हैं, हमें ज़्यादा सर्वर पे हिट नहीं करना चीज़ों को, बार-बार क्लाइंट से सर्वर रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। तो सर्वर पे लोड भी कम हुआ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आई। और तीसरा पॉइंट इज वी आर building SPAs in today's world. So SPAs is basically single page applications. So SPA का मतलब
एक ही पेज पे सारी फंक्शनैलिटी और पूरी एप्लीकेशन आ गई। जैसे amazon.in, facebook.com, instagram.com। सो हमें बार-बार instagram.com को रीलोड नहीं करना पड़ता या amazon.com को रीलोड नहीं करना पड़ता। अगर हमें कोई भी चीज़ अपने कार्ट में ऐड करनी है या रिमूव करनी है, हम सिर्फ सम क्लिक्स ऑफ बटन्स और उसके तरीके से बेसिकली जो भी फीचर्स वहाँ पे है, हम अपने कार्ट में ऐड कर देते हैं या कोई भी आइटम डिलीट कर देते हैं। हम बार-बार amazon.com को रिफ्रेश नहीं करते। सो इसके पीछे एपीआईज़ ही होती हैं। सो एसपीएस की वजह से सेम थिंग, सर्वर पे लोड कम जाता है, सर्वर पे कॉस्ट कम जाएगी और जल्दी से जल्दी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो जिससे यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। अब फोर्थ पॉइंट इज़ क्या होता है कि एपीआई से हम अपना बिज़नेस लॉजिक को डायरेक्ट यूज़र पे या मतलब यूज़र के सामने लाने से बचा सकते हैं। कैसे? अब मान लो कि हमें कोई भी एक फंक्शनैलिटी है जहाँ से हमें डेटाबेस से कुछ भी डेटा फेच करना है। तो हमने सिंपल एक एपीआई यूज़ करी, हमने एपीआई में कोई भी हमें पैरामीटर्स चाहिए होंगे, हमने वो पैरामीटर्स भेजे और हमें रिस्पॉन्स मिल गया। एंड यूज़र को या यूज़र जो है उसको ये नहीं पता कि पीछे क्या बैकएंड प्रोसेसिंग हुई, कि कौन से डेटाबेस या कहाँ से कैसे क्या-क्या हुआ, क्या राउट रहा उस पूरे डेटा का फेच करने में। So it helps in obfuscation of business logic of the application as well. Now the last point is sometimes क्या होता है कि हम जब कोड लिखते हैं तो हम नई नई टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट करते हैं बिकॉज ऑफ सम डिपेंडेंसीज और एनीथिंग, फॉर एनी रीजन हम नई टेक्नोलॉजीज पे डेवलप करते हैं अपने टूल्स, अपने सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है कि कुछ पुराना कोड होता है, वो लेट्स से कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कोड है या उसकी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। सो अब उसको हम दोबारा डेवलप नहीं कर सकते, वी डोंट हैव दैट मच टाइम और फॉर एनी एक्स वाई जी रीजन। तो हम क्या कर सकते हैं, उस कोड के ऊपर एक रैपर एपीआई लिख सकते हैं। सो दैट कोड इज कॉल्ड लेगेसी कोड, जो डेप्रिकेटेड हो गया, ये जो ओल्ड लैंग्वेज में लिखा गया है। हम उसके ऊपर अपनी रैपर एपीआई लिखेंगे जिसके थ्रू अब हम वो कोड को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दैट एपीआई। तो हमें एडिशनल डेवलपमेंट नहीं करना पड़ा, हमने अपना पुराना कोड विदाउट इवन कन्वर्टिंग into the new language or into the new dependencies that we are using, हमने APIs के थ्रू उस कोड को भी यूटिलाइज कर लिया। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट pointers that you can remember कि why APIs are becoming so essential in modern development. So that's all in the first video of the API security series. We will continue with the common vulnerabilities and misconfigurations and other topics in the next upcoming videos. Stay tuned, stay connected.